Dear students, welcome back. And I have something special for you today. Propcourse brings the paper of Physical Science ICAR JRF 2018. We have the top 50 questions today, and in your next session you will have the second part, that is the remaining 50 questions. Start करते हैं आज का सेशन जल्दी in an enthusiastic manner. Okay. Propcourse के बारे में I think it needs no more introduction. You all are acquainted. Helping you in agriculture, degree program, competitive program, and job-oriented exams. So, I, Abhishek Pal, JRF holder, will be your educator today and for your upcoming classes. सबसे पहले हम बात करेंगे, जस्ट वन सेकेंड, मैं ये इंपोर्ट जस्ट मैं खोल लेता हूं इसको. ओके, सो 2018 का फिजिकल साइंस का पेपर, पहला क्वेश्चन, द सॉयल ग्रुप्स, ओके, पेडोकैल, पेडल्फैम. Those who have studied my last session on soil classification, आप लोग ये आंसर डायरेक्टली दे सकते हो. पेडोकैल एंड पेडल्फैम, this was given by, your options are Marbert, Joffe, Dokuchev, Baldwin and Associate. करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्बर्ट. ओके, बेल्डविन एंड एसोसिएट ने उन्होंने रशियन कंसेप्ट पे गया था. पेडोकैल एंड पेडल्फैम को दे डी एम्फासिस्ट. डोकोचेव का इससे कुछ कनेक्शन नहीं है. डोकोचेव ने दिया था जेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड जॉफी का रोल है इन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. ओके, नेक्स्ट, critical soil test value approach was given by, your options are Kate and Nelson, Larson, Arnold and Stout, Bray. So your correct answer will be Kate and Nelson. ये कैसे याद रखेंगे? C और C, दोनों C से आप याद रख सकते हो. Next is example of tectosilicate. Your options are pyroxene, quartz, amphibole and mica. तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है एंड इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी. गाइस, मैं आपको आंसर ही नहीं बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन से ब्रांच या सेक्शन से आपको पुट अप किया गया है. फर्स्ट वन, इट इज आस्क्ड फ्रॉम सॉइल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, ये आपका पूछा गया है सॉइल फर्टिलिटी से और एनालिसिस से, एनालिटिकल केमिस्ट्री. ये आपका पूछा गया है सॉइल मिनरलोजी से. Which class of land capability classes have strong salinity classes? Your options are class 1, 4, 2 and 3. So इसका सही जवाब कौन सा होगा? ये हमने डिस्कस किया था लैंड कैपेबिलिटी के लेक्चर में. ऑप्शन बी. नेक्स्ट वी हैव which organic fraction of humus has low molecular weight? Your options are fulvic acid, hematometalinic, humic acid, humin. तो आपका सही जवाब है fulvic acid. Highest hygroscopic fertilizer. Your options are ammonium nitrate, ammonium sulfate, urea, CAN. सही जवाब है ammonium nitrate. Now I'll tell you from where these questions are being asked. This is asked from land capability classification. This is asked from organic matter. ये आपका पूछा गया है सॉइल फर्टिलाइजर से.
hen and chicken disorder in grapes is due to deficiency of. Your options are boron, zinc, iron, molybdenum. Correct answer is in clay mineral identification, which method is commonly used for qualitative analysis? X-ray, differential analysis, infrared spectroscopy. तो अकॉर्डिंग टू मी इसका सही जवाब होना चाहिए एक्सरे, और आप लोग इसको क्रॉस चेक कीजिएगा वेदर बी एंड सी इज हैविंग एनी रोल, तो देन आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस. क्लियर? नेक्स्ट वन, द पोटेंशियल ion determining the potentiality in soil system. Your options are silica and aluminium, oxygen and hydroxide, hydrogen and hydroxide, none of the above. So here your correct answer is C. VAM, वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये आपका एक फंगस है जो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में हेल्प करता है, स्पेशली फॉस्फोरस. ये आपका कौन से कैटेगरी में आता है? एक्टो, एंडो, नॉन, बोथ. ये इसका जो आंसर है दैट इज योर बी. मैग्नीशियम रिच सेकेंडरी क्ले मिनरल. जस्ट वन सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको बताया नहीं है कहां से पूछा गया. ये आपका है सॉयल न्यूट्रिएंट्स. ओके, दिस इज योर सॉयल मिनरलोजी. ये आपका पूछा गया है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम यू कैन से सॉयल कॉलोइड. ये आपका पूछा गया है सॉयल माइक्रोब्स या बायो फर्टिलाइजर चैप्टर से. सो जो मैग्नीशियम रिच सेकेंडरी क्ले मिनरल है, योर ऑप्शंस आर मोनोबोराइट, केओलिनाइट, क्लोराइड, वर्मिक्यूलाइट. तो योर करेक्ट ऑप्शंस option is option B, vermiculite. Next you have is which of the following is an aquatic fern? Your options are Azolla, Anabaena, Blue green algae, both. आपका सही जवाब है Azolla. ये आपका पूछा गया है from bio fertilizer. ये आपका पूछा गया है from soil mineralogy. Most of the coastal soils are deficient in. तो आपको इससे याद में लाना है ये कौन से सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट एलुवियल सॉइल. ऑलवेज रिमेंबर ए फैक्ट ऑफ एलुवियल सॉइल. दे आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर बट फेयरली सफिशिएंट इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. आपका सही जवाब होगा एंड इन दोनों में दे आर सफिशिएंट. ओके, नेक्स्ट इज weathering of basalt rocks results in the formation of basic soil, acidic soil, loam soil, sandy soil. सही जवाब है आपका basic soil. Next you have chem photosynthesis is found in. Okay, so chem photosynthesis ये basically desert या like cactus में पाया जाता है. तो सक्यूलेंट प्लांट, रूगलिनागी, लाइकेन सब मच नहीं होगा. इज द करेक्ट आंसर. ये आपका पूछा गया है सॉयल ऑफ इंडिया से. ये आपका पूछा गया है रॉक्स से. ये आपका पूछा गया है सॉयल बायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोफर्टिलाइजर से. फ्लेम फोटोमेट्री इज यूज्ड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ एमिशन, एब्जॉर्प्शन, हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR. तो इसका सही जवाब होगा बी. नेक्स्ट यू हैव एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड. सो दैट विल बी योर, जो ग्राउंड वाटर है मतलब अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बिलो अर्थ, तो दैट इज योर जियोथर्मल. नेक्स्ट, more organic matter in sewage and polluted for the biological oxygen demand. BOD is the biological oxygen demand, so that decreases. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम पोटाशियम चैप्टर और यू कैन से सॉयल एनालिटिकल केमिस्ट्री. दिस इज आस्क्ड फ्रॉम वाटर चैप्टर.
ये थोड़ा सा जीके टाइप क्वेश्चन है, ओके, थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है। ये आपका पूछा गया है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर या लाइक सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट यू हैव इज cancer causing agents is called, so the mutagens, teratogens, neurogens, carcinogens, so सही जवाब है carcinogens। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, and you have MIC। तो MIC का फुल फॉर्म क्या है? Who can answer me the full form of MIC? This is methyl isocyanate, so it is the correct answer। Alum is a coagulant, flocculant, catalyst and disinfectant। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होगा फ्लॉकुलेंट, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको रीचेक कीजिए, अगर नहीं मिला तो आई विल जस्ट वर्क ऑन दिस अगेन। हिस्टोसोल्स आर द सॉइल व्हिच कंटेन, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया ना कि कहां से पूछा गया है, जस्ट 1 सेकेंड। ये भी आपका जीके टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी ये सॉइल पोल्यूशन से रिलेट करता है। ये आपका एक्चुअली ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, ये बेसिकली केमिकल, ओके, तो केमिकल मतलब क्या हुआ? सॉइल केमिकल्स, ओके, सॉइल केमिकल मतलब फ्रॉम यू कैन से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ऐसे पार्ट से ये पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जनरल केमिस्ट्री का। हिस्टोसोल्स आर द सॉइल रिच इन, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सॉइल एपिपेडन से। तो इंडिया में हिस्टोसोल का, नॉट एपिपेडन सॉरी, सॉइल ऑर्डर से मोर देन 20%, मोर देन 2%, मोर देन 5%, 10%, सही जवाब है मोर देन 20%। The pine vegetation will more likely develop in this condition, acidity, sodicity, salinity, neutrality। तो पाइन में हिसाब से यह आपका लेटराइजेशन सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस से पूछा गया है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए होगा। 24, with increasing the moisture heat capacity of soil, what happens to the heat capacity? Actually it initially increases, okay, क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिकेट है वो ज्यादा है, तो इनिशियली इट इंक्रीजेस, उसके बाद ये डिक्रीज करता है, बट ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं, तो हम इंक्रीज पे जाएंगे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट वन, द अवेलेबिलिटी ऑफ Fe and manganese is maximum at pH less than 5.5, more than 5.5, less than 5.5, okay, you have more than 6.5 and 7.5। तो आप हमेशा याद रखना, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैटायंस है, दे आर अवेलेबल एट लो pH। CN ratio in the bodies of microorganisms ranges from 1:1 to 4:1, 4:1 to 9:1, 10:1 to 14:1, 15:1 to 20:1। तो सही जवाब है आपका which micronutrient is not essential in photosynthesis plant। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर क्लोरीन होगा। ये मैं मेरे जनरल आइडिया से बोल रहा हूं, क्लोरीन होना चाहिए, आप लोग इसको प्लीज रीचेक। तो दिस इज फ्रॉम सॉयल फर्टिलिटी, सॉयल बायोलॉजी, ये भी आपका सॉयल फर्टिलिटी और माइक्रो न्यूट्रिएंट का सेक्शन से, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हुए, द
Pale yellow interveinal fluorescence in the young leaves of plant is the symptom of नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, क्लोरीन। सही जवाब है आयरन। मिड सेशन ड्राइंग ऑफ द फील्ड इज अ प्रैक्टिस कॉमनली अडॉप्टेड इन wheat, शुगरकेन, राइस एंड कॉटन। तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन एग्रोनॉमी से है, बट फिर भी ये थोड़ा सा सॉइल साइंस को रिलेट कर लेता है क्रॉप प्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए शुगरकेन। नाउ यू कैन आस्क मी सर व्हाई? मे बी टू इंक्रीज द सुक्रोज कंटेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से हो गया सॉइल फर्टिलिटी से। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये तो क्रॉप का क्वेश्चन है, शुगरकेन का क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन व्हीट एंड मेज कॉल्ड एज CIMMYT इज लोकेटेड एट, इसका आंसर सही जवाब है आपका मैक्सिको। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम इंस्टीट्यूट नेशनल एंड इंटरनेशनल। In India, which soil order has negligible area? तो इसका आंसर ऑक्सीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑक्सीसोल। दिस इज हाईली weathered soil. Particle density analysis is made by Arnold's law, Darcy's law, Ishiwada's law, Stokes law. Okay, यहाँ पे गाइस मैं एक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। स्टोक्स लॉ सॉइल टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, सॉइल टेक्सचर ट्राइंगल पे ऊपर मैंने क्लास लिया है। आप लोग प्लीज क्रॉप कोर्स के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर वॉच कीजिए, वो बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड आई एश्योर वहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। मतलब एक ट्राइंगल से कैसे सॉइल टेक्सचरल क्लास पता करते हैं, दैट यू कैन लर्न। Which one does not contribute to nitrogen availability in soil? Decay of organic matter, electric storm, agrobacter, liming। तो इसका आंसर होगा liming। यहां से आपको होता है जो एटमोस्फेयर का N2 है वो होता है, सॉरी ये तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन है वो अवेलेबल, ये जो है आपका एटमोस्फेयर में जो N2 है दैट इज अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज lateral movement of water is called percolation, seepage, infiltration, permeability। इसका सही जवाब होगा आपका seepage। ओके, नेक्स्ट यू हैव इज osmotic potential of pure water is 0, 1, more than 1, less than 1। तो इसका आंसर होना चाहिए 0। ओके, नेक्स्ट वी हैव द weight of a half molecule of water is, इसका आंसर आपका होगा मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर आपका होना चाहिए 9। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कहां से पूछा गया है। तो ये आपका पूछा गया है फ्रॉम सॉयल ऑर्डर, दिस इज आस्क्ड फ्रॉम सॉयल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आपका पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सॉयल वाटर, ये भी आपका वाटर, ये भी आपका वाटर। तो गाइस जो सॉयल वाटर का चैप्टर है, ओके, सॉयल वाटर का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा, प्लीज रीड दिस चैप्टर वेल। आयन एक्सचेंज इज ए स्टैटिक प्रोसेस ऑफ कैटायन एक्सचेंज ओनली। ओके, ये कैटायन होगा, एनायन एक्सचेंज ओनली। तो ये एक्चुअली रिवर्सेबल प्रोसेस है। मतलब जो कंसेप्ट है आयन एक्सचेंज बिटवीन सॉलिड टू सॉलिड, बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड, बिटवीन लिक्विड टू सॉलिड, तो मेरे हिसाब से ये रिवर्सेबल होना चाहिए। हालांकि बोथ C and D इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो इस पे मैं मार्क करूंगा रिवर्सेबल पे। इंटरनेशनल पिपेट मेथड फॉर मेथड ऑफ H2O2 इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक मैटर। Which of the following mineral does not belong to primary mineral? Your options are quartz, orthoclase, biotite and hematite। तो सही जवाब है आपका हेमेटाइट। ये तीनों आपका
प्राइमरी मिनरल्स में आता है। तो ये आपका पूछा गया है फ्रॉम सॉइल कॉलोइड से या आयन एक्सचेंज का टॉपिक है। ओके, ये आपका पूछा गया है सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज से। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम सॉइल मिनरल। वेलकम टू लास्ट 10 टॉपिक्स फॉर द डे। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ग्राम सेंटीमीटर, then calorie per centimeter, calorie per gram, then you have poise. तो according to me इसका आंसर होना चाहिए poise। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यू हैव इज which law is used in studies of air movement। तो मैंने आप लोगों को सॉइल एयर का चैप्टर बताया, डार्सीज लॉ, फिक्स लॉ, फोरियर्स लॉ, ओम्स लॉ। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका फिक्स लॉ। ओके, टोटल पोरोसिटी इज लेस इन, तो ये आपका सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल। तो जो टोटल पोरोसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट इन क्ले सॉइल। ओके, लोम सॉइल भी क्लोज आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, एक मिनट मैं यहाँ पे बता देता हूं कहां से पूछा गया। दिस इज आस्क्ड फ्रॉम सॉइल योर वाटर। ओके, this is asked from soil air. This is asked from physical properties of soil. The process of mixing of the soil is called pedoturbation, podzolization, humidification, lateralization. So your correct answer is pedoturbation. Cation exchange capacity of vermiculite. ओके, तो इसका सही जवाब होगा आपका, यू हैव योर ऑप्शन। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन मिस आउट हो चुका है, नो प्रॉब्लम, बट हम इसमें ही देखेंगे। 80 to 100, 150 to 100 to 150, 3 to 5। आप एक और ऑप्शन ले लो, चलो 15 to 40। ओके, तो ये है आपका केओलिनाइट का। ठीक है, तो जो वर्मिकुलाइट क्या है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ये वाला 100 से 150 सेंटीमोल पर केजी। यूनिट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्कीप द यूनिट्स। मोस्ट पोरस सॉइल स्ट्रक्चर इज ग्रेनुलर, क्रम्बी, प्रिज्मेट्रिक, प्लेटी। तो ये होगा आपका ग्रेनुलर। ओके, नेक्स्ट यू हैव इज द नंबर ऑफ एपिपेडन फाउंड इन इंडिया। तो टोटल वर्ल्ड में है आपका 8, इंडिया में जो है वो है 3। कौन कौन सा है? MOU, मौलिक, और्चिक, आम्रिक। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने, अच्छा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेसेस से। दिस इज फ्रॉम सॉयल सेकेंडरी मिनरल। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम अगेन सॉयल फिजिकल property. Which is not associated with podzolization. Removal of SI. It is not associated. The unconsolidated material above the parent material is known as regolith, profile, solemn, pedon. Profile मतलब OAEBC. Solemn means ABC. Pedon means series of peds. regolith होगा unconsolidated parent material above the parent material. Most limiting factor for crop cultivation in desert area, water, temperature, both, none। तो इसका सही जवाब है वाटर। हालांकि टेम्परेचर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी पूछा गया था। ओके, 2020 की जीआरएफ में भी पूछा गया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Soils of this texture have minimum water holding capacity। तो इसका तो ऑप्शन है सैंडी, क्ले, लोमी, क्ले लोम। तो अनडाउटेडली आग बंद करके हिट सैंडी, क्योंकि सैंडी में पोर स्पेस ज्यादा है। तो पोर स्पेस ज्यादा होने के कारण यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा। ओके, वाटर विल ड्रेन आउट थ्रू दिस पोर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज के चैप्टर से। ये आपका पूछा गया है मे बी फ्रॉम सॉइल वाटर चैप्टर। This is from soil classification. This is also from soil forming processes. ये वाला आपको पूछा गया है soil weathering से।
Okay, so this is all about the top 50 questions of ICAR JRF 2018 physical science, that is soil science. वैसे आपको मैं अभी दो इंफॉर्मेशन ऐसे बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक एनालिसिस करना है क्वेश्चन पेपर से कि कौन से सेक्शन से ज्यादा हिट किया गया, एंड यू हैव टू पे एडिशनल अटेंशन into that particular section so that you can score handsome. Okay, बुक्स के बारे में बात करते हुए बहुत लोगों ने आपने मुझे पूछा है कि सर विच बुक्स मैंने पहले भी बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूं. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस बाय दिलीप कुमार दास. ओके, यू कैन आल्सो प्रेफर फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जिसको हम ISSS बोलते हैं. ठीक है, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, नियर अबाउट 800 to 1000, बट अगर आपको उसका कंसेप्ट है, आप डेफिनेटली इंडिया में टॉप 30 में रैंक करेंगे JRF में. ओके, बिकॉज दैट बुक इज लाइक ह्यूज, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बट द लैंग्वेज इन इजी. पेडोलॉजी के लिए यू कैन प्रेफर द बुक ऑफ J. Sahgal. ओके, एंड फॉर सॉइल फिजिक्स यू कैन प्रेफर A.K. Saha बुक. For biology, you can look for Biswas and Mukherjee, author. ठीक है, soil biology. ओके, सो ये है बुक्स के बारे में. ये था टॉप 50 आज के बारे में. आप लोग प्लीज इसको पेपर एंड पेन में लिख लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए. डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, इट्स ओके. अगर आप स्टडी करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे. फील फ्री टू इंटरेक्ट विथ मी. Okay, so my name is Abhishek Pal. You can also interact me via social media platforms. Okay, so that's all for today's session. I hope you have enjoyed. So please subscribe to Cropcos in Telegram and also YouTube to get such more interesting and informative video. Till that, thanking you for your presence and attention. Thank you. Have a great day.